Okay, so before we go ahead with more questions, we have to go through last two remaining topics of theory. क्योंकि अगर आपको याद होगा तो we have mentioned there are three modes of heat transfer: conduction, convection, and radiation. Conduction is the mode of heat transfer in solids, and convection is in liquids, mostly in liquids, of course. Of course, air में भी होता है convection. Then the last mode of heat transport or transfer is radiation, and it is the fastest. क्यों? क्योंकि इस केस में heat is transferred from one point to another via electromagnetic waves. For example, to the recent example here, because we are still into winters somehow, and जब ठंड लगती है तो we go out and stand. The heat that you receive from sun was generated inside sun, and it travels here in the form of electromagnetic waves. It takes roughly, few minutes for that heat to reach here. Few minutes, whereas sun is few crore kilometers from here, right? बहुत छोटा distance है ना? And still you receive heat very quickly. That is another thing कि photon को core से surface तक आने में कुछ 50,000 साल लग जाते हैं. That is a different thing, right? So the photon which is generated inside the star takes thousands of years to come to the surface. फिर वहां से यहाँ तक is just 8 minutes of journey. So that's okay. That is higher level physics. Anyways, so radiation, it is a mode of transfer of heat from a body at higher temperature, to a body at lower temperature, via electromagnetic waves. आपको पता है क्योंकि रेडिएशन, इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves. Electromagnetic waves, they normally, of course, they travel in a straight line and with very high speed. अगर एयर में होगा तो 3 × 10⁸, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, राइट? स्ट्रेट लाइन जब तक मीडियम चेंज नहीं होता तब तक. Light electromagnetic wave travels in a straight line. Definitely when it changes medium, then it bends away or towards the normal, depending on whether it is going from denser to rarer or rarer to denser. So since electromagnetic waves travels in a straight line, with very high speed, of course with speed of light, with very high speed, hence radiation is the fastest mode of heat transfer. Right? और एक मेजर डिफरेंस है. कंडक्शन के लिए यू नीड अ मीडियम. हॉटर एंड और कोल्डर एंड के बीच में मटेरियल होना चाहिए, सॉलिड. और कन्वेक्शन के लिए इधर लिक्विड और गैस, बट यू नीड अ मटेरियल मीडियम. फॉर रेडिएशन यू डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम. सो रेडिएशन इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर. Radiation is a mode of transfer in which no material medium is required. So that's all about radiation. That is all you need to know. इतना ही पता होना चाहिए आपको for your syllabus. That's it. Then next topic is Newton's law of cooling. अब ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है पहले वो समझ लेते हैं. इंटरेस्टिंग. सर्दी है अब तो सुबह सुबह हमें आदत है गर्म पानी से नहाने की. पानी को जितना ज्यादा गर्म करोगे उतना जल्दी ठंडा होगा. Have you experienced this? जितना ज्यादा गर्म किया उतना जल्दी ठंडा हो जाता है. So that is why
योर पेरेंट्स, ऑफ कोर्स एटलीस्ट माय पेरेंट्स यूज्ड टू टेल मी, अरे साथ में ठंडा पानी मिक्स करो, क्योंकि अगर आप उसमें थोड़ा ठंडा पानी मिक्स करते गए तब नहीं समझ में आता था, बिकॉज तब फिजिक्स पता नहीं था। थोड़ा थोड़ा आप ठंडा पानी मिक्स करते गए तो नाउ दैट हॉट वाटर becomes warm, not really very hot but warm, but now it remains warm for a longer time. अब जल्दी से ठंडा नहीं होगा वो, क्यों? बिकॉज ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, अभी रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बोल रहे हो फ्रॉम अ बॉडी, बॉडी हीट लॉस कब करेगा? जब हीट होगा। इसका मतलब ऑलरेडी अज्यूम्ड है दैट द बॉडी इज एट हायर टेम्परेचर। द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम अ बॉडी is directly proportional to difference in the temperature of the body and the surroundings, right? Example जो भी बताया मैंने, hot water, अब ठंड में few days back 3 डिग्री टेम्परेचर था, 2.7, तो सराउंडिंग is, if it is colder, imagine सराउंडिंग है 5 डिग्री पे, just a number, और आपने वाटर को गर्म कर दिया 85 डिग्री तक ले गए, टेम्परेचर डिफरेंस इज 85 minus 5, तो 80 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस है। तो इन दिस केस वाटर विल कूल डाउन फास्टर, क्योंकि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा बॉडी में, बॉडी इस केस में वाटर है, एंड सराउंडिंग में, उतना ही रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट विल बी फास्टर। अब अगर आप उसी में पानी, कोल्ड वाटर मिक्स करते गए, इमेजिन नाउ यू हैव वाटर एट 60 डिग्री एंड सराउंडिंग इज स्टिल एट 5 डिग्री, तो डिफरेंस इज 55 degrees. So now temperature difference is less, so the rate of cooling will be less, rate of loss of heat will be less. So this is what Newton's law of cooling tells you. तो बहुत सिंपल है, and always remember, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो लिखना is not a big deal. तो it states that what does it state? It states that the rate of loss of heat, the rate of loss of heat from a body or by a body is directly proportional to the difference in temperature between the body and the surrounding. Between the body and the surroundings. Okay. So as you know, किसी स्टेटमेंट लिख के चलेगा नहीं, तो we have to also give an example. You can take any example. You can say, okay, let us take a body, and this body is, let us say, it is at higher temperature T, और जो surrounding है, it is at lower temperature T0. So consider a body at higher temperature T and T naught be the temperature of the surrounding, be the surrounding temperature या फिर temperature of the surroundings temperature. Okay, then according to Newton's law of cooling, rate of loss of heat is dq by dt, which is proportional to t minus t0. कुछ बुक्स में t को थीटा बोला है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल t मतलब टाइम, तो वो t टेम्परेचर और ये t टाइम, तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो, इसलिए दे आर कॉलिंग इट एज थीटा एंड थीटा 0, राइट? तो अब आपको पता है, अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो यू नीड टू राइट सम कांस्टेंट, और रिमेंबर दिस कांस्टेंट k is not coefficient of thermal conductivity, it is just a constant, right? तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, टेम्परेचर नहीं बोला मैंने, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, इसे dq by dt is equal to k t minus k0, right? But do you remember, but we know that, हमें पता है, क्या पता है? हीट इक्वेशन, but we know that हीट इक्वेशन अगर आपको याद होगा,
dq इक्वल टू एम एस डी टी, सिर्फ वहां पे हमने डेल्टा से डिनोट किया था, डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, राइट। तो डी क्यू इज एम एस डी टी, सब्सटीट्यूट कर दो उसमें इक्वेशन नंबर 1 में, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, so from equation number 1 and 2 you can write down dq की जगह पे आप लिखोगे ms dt, ms dt upon small dt is equal to k t minus t0, तो dt by dt equal to k upon ms t minus t0, बट k तो कांस्टेंट था, m भी कांस्टेंट है क्योंकि बॉडी का मास कांस्टेंट है, एस स्पेसिफिक हीट, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट या फिर स्पेसिफिक हीट इन जनरल, ये होता है मटेरियल का प्रॉपर्टी, तो मटेरियल तो एक ही है, तो दिस इज आल्सो कांस्टेंट, तो ये पूरा का पूरा हो गया कांस्टेंट। इसको हम एक नया नाम दे देंगे, लेट k अपॉन ms is equal to c, which is again some constant, therefore you have dt by dt equal to c t minus t0, therefore dt upon dt is proportional to t minus t0, क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, राइट। तो यू रिमेंबर वी स्टार्टेड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बाय स्टेटिंग व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, तो स्टेटमेंट वाज द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, मतलब dq by dt is directly proportional to difference in temperature between body temperature and surrounding temperature, और यहाँ पे हम what we have obtained is dt d capital T by d small t, capital T stands for temperature, मतलब rate of fall of temperature, तो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का अल्टरनेट स्टेटमेंट बना सकते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या था, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, हीट का लॉस होता है, टेम्परेचर का लॉस नहीं होता, टेम्परेचर का फॉल होता है, राइट। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, यहाँ पे बोलोगे रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग्स। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग can also be stated as the rate of fall of temperature, rate of fall of temperature of a body is directly proportional to temperature difference या difference in temperature between the body and the surroundings, between the body and the surroundings. So this is all about Newton's law of कूलिंग, राइट। बहुत सिंपल है, तो याद रखना, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी जीरो, या फिर रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी जीरो। तो नेक्स्ट टाइम ये याद रखना, व्हेन यू आर इन विंटर्स किसी भी चीज को ज्यादा गर्म मत करना, क्योंकि उतना ही जल्दी ठंडा होगा, राइट। गुड, सो दैट मार्क्स द एंड ऑफ थ्योरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट अस सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स। Example 7.19. Calculate the rate of loss of heat through a glass window. तो ये क्वेश्चन इंटेंशनली यहाँ पे है क्योंकि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट आप इसमें भी सीखा है अभी न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में, और इससे पहले भी सीखा था। डू यू रिमेम्बर कहाँ पे जब आपने हीट करंट डिफाइन किया था या फिर लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी डिफाइन किया था, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहां पे कौन सा इक्वेशन अप्लाई करना है। तो जैसे ही बोला रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट थ्रू अ ग्लास विंडो, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एरिया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड थिकनेस 4 mm, व्हेन द टेम्परेचर इनसाइड इज 27 डिग्री सेल्सियस एंड आउटसाइड इज -5 डिग्री सेल्सियस।
कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी मेंशन भी किया है इन्होंने, ऑफ ग्लास इज 0.022, इंपॉर्टेंटली यूनिट्स कैलोरी पर सेकेंड पर सेंटीमीटर पर डिग्री सेल्सियस। तो इन द गिवन पैरामीटर्स आपके पास आपको दिया है एरिया विच इज 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। डू नॉट कन्वर्ट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाकी के भी आपको सीजीएस सिस्टम में दिए हैं, तो डू नॉट कन्वर्ट हियर, लगेगा तो बाद में देखेंगे। और आपको क्या बताया है? आपको बताया थिकनेस मतलब x, थिकनेस ऑफ द विंडो इज x which is 4 mm, और आपको पता होगा 4 mm is 0.4 centimeter. Then what else is given to you? Temperature T1 which is 27 degree, T2 is -5 degree. वैसे I don't care what is T1 and T2, what we care is what is delta T, difference in temperature, 32 degrees Celsius. 27 on the positive side and 5 on the negative side, total 32 का difference है, तो 32 degree Celsius is the temperature difference, right? Then coefficient of thermal conductivity K, it is 0.022 calories per second per degree Celsius per centimeter. Okay, you are supposed to find out, आपको क्या find करना है? आपको पूछा है rate of loss of heat, so they are asking you what is Q by T. अब फॉर्मूला तो पता ही है, you already know what is the formula, so you know, you must remember formula was Q by T. अगर यहाँ T लिया है तो यहाँ T नहीं लोगे राइट हैंड साइड पे, तो Q by T is nothing but A K T1 minus T2, मतलब डेल्टा T बेसिकली, so you can directly write down delta T here, or in this case you will write down over here delta T, small t मत लिखना क्योंकि small t आपने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, अपॉन था thickness of the slab which is x, right? This is what you have. अब सॉल्यूशन में आपको सिर्फ इसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं, तो Q by T इक्वल टू K। वेट अ मिनट, यहाँ पे ये जो सीजीएस यूनिट्स है दे मे क्रिएट अ कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यू सी क्या करोगे, के की यूनिट क्या दी है आपको? कैल नहीं यूनिट्स, कैलोरी पर सेकेंड पर डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर। एरिया किसमें दिया है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। डेल्टा टी किसमें है? डिग्री सेल्सियस में। एक्स किसमें है? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसल 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 एंड कैंसल, तो कैल पर सेकेंड। तो आपको कहीं पे भी सीजीएस को एसआई में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो रिमेंबर दिस। ओके, देन क्यू बाई टी, के की वैल्यू कितनी है? 0.022। एक काम करो 22 इंटू 10 पावर -3 लिख लो, राइट? देन व्हाट यू हैव? एरिया इज 10 पावर प्लस 3, 1000 मतलब कितना? 10 पावर प्लस 3। डेल्टा टी कितना है? 32 अपॉन टी, टी की एक्स अपॉन एक्स। व्हाट इज एक्स? 0.4 सेंटीमीटर, करेक्ट? अब 0.4 को ऐसा लिख लो, 4 इंटू 10 पावर -1, 4 इंटू 10 पावर -1। ये और ये हो गया कैंसल, 1 जा एंड 8 जा, 22 8 जा 176, और ये ऊपर जाएगा 176 और 10 1760। If you do not write calories per second, या फिर इन बुक्स यहाँ पे पॉइंट होता है, यहाँ पे कैल होता है, किलो कैलोरी पर सेकेंड। तो नॉर्मली इट इज मेंशन्ड इन टर्म्स ऑफ किलो कैलोरीज पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेटल स्फीयर कूल्स एट अ रेट ऑफ, तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि कौन सा लॉ अप्लाई करना है? एट अ रेट ऑफ 1.6 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, मतलब dt by d स्मॉल t, मतलब डेफिनेटली हियर वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो यहाँ पे गिवन क्वांटिटीज में आपको दिया है dt by d स्मॉल t, राइट, इक्वल टू 1.6 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। when its temperature, ऐसा जब बोला हो
व्हेन इट्स टेम्परेचर इज, मतलब बाद में टेम्परेचर चेंज होने वाला है। तो ये आ गया आपका रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर एट द फर्स्ट कंडीशन, और टेम्परेचर इनिशियल इज 70 डिग्री सेल्सियस। एट व्हाट रेट विल इट कूल, मतलब फाइंड करने के लिए बोला है एट व्हाट रेट विल इट कूल, मतलब वापस से dt by dt बट एट सेकेंड टेम्परेचर। when its temperature T2 is 40 degree Celsius, the temperature of the surrounding T0 कितना है 30 degree Celsius. Okay, this is what you have. Then formula of course आपको पता ही है, we have just derived this, dt by dt equal to some constant k या c, जो भी हमने यहाँ पे लिखा था, c लिखा था, whatever it is, k minus t0. तो then what you have is, आप इसको पहले dt by d small t for 2 equal to c t2 minus t0, and dt by d small t1 equal to c t1 minus t0. राइट, अब इन दोनों को डिवाइड कर दो. व्हेन यू डिवाइड दीज टू, ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है c, इट विल डिसअपियर, मतलब कैंसल आउट. तो व्हेन यू डिवाइड दीज टू, डिवाइड दीज टू, c हो जाएगा आपका कैंसल आउट हो गया. आपको फाइंड करना था dt by dt2, so here you will get dt by dt2 upon, this is 1.6, remember degree Celsius per minute, equal to, ऊपर था T2 minus T0, T2 था 40 और T0 था 30, यहाँ पे था 70 minus 30, 10 by 40, 1 by 4. So you will have this as dt by dt2 equal to 1 by 4, और यहाँ से 1.6. So 1 and 0.4 the 0.4 degree Celsius per minute. So now this is actually proving Newton's law of cooling. कैसे? जब सराउंडिंग टेम्परेचर 30 था और बॉडी का टेम्परेचर 70 था, तो हर एक मिनट में 1.6 डिग्री was the fall of temperature, and when the surrounding was still at 30 but the body was at 40, the rate of fall of temperature is 0.4 per degree Celsius per minute. Question: a glass flask has volume 10 power minus 4 meter cube. It is filled with a liquid at 30 degree Celsius. If the temperature of the system is raised to 100 degree Celsius, how much of the liquid will overflow? Coefficient of volume expansion of glass is 1.2 into 10 power minus 5 per degree Celsius, while that of liquid is 75 into 10 power minus 5 per degree Celsius. तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं. क्वेश्चन में ऐसा है, you have a flask, ग्लास का बना हुआ फ्लास्क है. There is a liquid inside, and that flask is completely filled with this liquid. Then the system is at 30 degree Celsius, right? Now if you heat this and take it to 100 degree Celsius, मतलब you are changing the temperature by 70 degrees, 30 से 100, तो डेल्टा टी कितना आएगा 70. आपको ऑलरेडी पता है कि लिक्विड व्हेन हीटेड एक्सपांड्स, तो जब एक्सपांड होगा तो इट स्टार्ट्स ओवरफ्लोइंग. इट इज जस्ट लाइक आपने एक यूटेंसिल लिया और उसमें मिल्क भर दिया, कंप्लीटली भर दिया, एंड यू पुट इट ऑन अ बर्नर, राइट? तो आफ्टर अ व्हाइल यू सी मिल्क इज ओवरफ्लोइंग, राइट? तो अब कितना वॉल्यूम ऑफ दैट लिक्विड विल ओवरफ्लो, दैट इज द क्वेश्चन. व्हाट इज गिवन टू यू इज, सबसे पहले याद रखना, गिवन में ऑलवेज सी दिस, वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, इनिशियल वॉल्यूम, दैट इज V.
कितना 10 पावर -4 मीटर क्यूब। और आपको क्या दिया है, डेल्टा टी, मतलब टेम्परेचर 1 इज 30 डिग्री, टेम्परेचर 2 इज 100 डिग्री, तो डेल्टा टी विच इज T2 - T1 दैट इज 70 डिग्री सेल्सियस। Then coefficient of volume expansion gamma for glass is 1.2 into 10 power -5 per degree Celsius, पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर केल्विन, एक ही बात है। एंड गामा फॉर लिक्विड इज 75 into 10 पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। थोड़ा सा अच्छे से सोचोगे अगर, बिकॉज यू आर हीटिंग द सिस्टम, पूरे के पूरे सिस्टम का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब पूरे सिस्टम को आप हीट कर रहे हो। अगर आप पूरे सिस्टम को हीट कर रहे हो, इफ यू आर हीटिंग अप द सिस्टम, तो क्या होगा उस केस में, दोनों ही एक्सपांड होंगे, मतलब फ्लास्क विल आल्सो एक्सपांड एंड लिक्विड विल आल्सो एक्सपांड। इमेजिन अगर ऐसा सिचुएशन हो, जितना एक्सपांशन फ्लास्क का है उतना ही लिक्विड का है, तो ओवरफ्लो होगा ही नहीं, क्योंकि बाय सेम अमाउंट बोथ आर एक्सपैंडिंग। लेकिन डेफिनेटली वो कब होगा, जब दोनों का वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट सेम होगा। सेम है क्या? नहीं है। इसका मतलब ओवरफ्लो हो रहा है, मतलब लिक्विड ज्यादा एक्सपैंड हो रहा है। मतलब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस व्हाट इज द चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क। ग्लास का जो फ्लास्क है उसका वॉल्यूम कितना चेंज हुआ और लिक्विड का कितना हुआ। लेकिन लिक्विड का ज्यादा ही होगा, हमको पता है, ओवरफ्लो पूछा ही है कि ओवरफ्लो हो रहा है, तो लिक्विड विल एक्सपैंड मोर कंपेयर टू ग्लास फ्लास्क। नाउ फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V by V was equal to gamma into डेल्टा T। भूलना नहीं, अभी 8-10 लेक्चर पहले सीखा है हमने ये। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम is proportional to change in temperature and this constant of proportionality is called as coefficient of volume expansion। ये याद रखना। आपसे हम क्या करेंगे, ये V को यहां लेके जाएंगे। ओके, दिस इज व्हाट इट विल बी। अब यहां तक अगर पता है तो क्वेश्चन इज वेरी इजी टू सॉल्व, बिकॉज इन दिस केस व्हाट यू विल हैव इज डेल्टा VL माइनस डेल्टा VG इक्वल टू डेल्टा V इज V गामा डेल्टा T, लेकिन किसका? लिक्विड का। और इनिशियल वॉल्यूम तो दोनों का क्या था? सेम था। और दोनों का सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होना मतलब दोनों का टेम्परेचर चेंज होना, मतलब दोनों का चेंज इन टेम्परेचर भी क्या है? सेम है। माइनस V गामा G डेल्टा T। तो दिस इज इक्वल टू, यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से आप V और डेल्टा T को कॉमन निकाल सकते हो। हाउ मच इज दिस? 75 और ये 1.2 और दोनों में 10 पावर -5। आई यूज लिटिल शॉर्टकट्स, तो ध्यान दो इस पे। 10 पावर -4 और ये कितना? 70। इसका 0 और इसका 10 पावर -5, मतलब -4 और -4 -8। 75 में से 73.8 इंटू 7 इंटू 10 पावर -8, 73.8 इंटू 7, 74 इंटू 7 कर लो, क्या फर्क पड़ता है? 518। एग्जैक्ट आंसर इज 516.6 इंटू 10 पावर -8 मीटर क्यूब। दिस इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट विल ओवरफ्लो। वेरी लिटिल अमाउंट, क्योंकि 10 पावर -8 में है, राइट? So this is how you are supposed to solve this question. Next question, which will require more energy? Heating a 2 kilogram block of lead by 30 Kelvin or heating 4 kilogram block of copper by 5 Kelvin. Given specific heat for lead is 128 joule per kilogram per Kelvin, that of copper is 387. Do you remember? अभी भी बताया था मैंने, dq is ms dt, correct?
गुड। तो अब DQ फॉर पहला मटेरियल कौन सा है? लेड। इसको ठीक है, एनीवेज आई विल नॉट राइट डाउन नेम्स हियर। M कितना है इसका? 2। S कितना है इसका? 128। DT कितना है इसका? 30। और सेकंड मेटल इज कॉपर। M कितना है कॉपर का मास? 4। S इज 387, DT इज 5। करेक्ट। तो this is nothing but 256 into 3, 768, 7680 joule. And this is 5 4 20, 20 को 0 को साइड में रखो, 387 का डबल कर लो। 387 का डबल कितना होता है? 387 into 2, 7740। तो किसको ज्यादा हीट लगा? कॉपर। डन। तो हीट रिक्वायर्ड फॉर कॉपर इज ग्रेटर देन हीट रिक्वायर्ड फॉर लेड। डन। खत्म क्वेश्चन। दैट्स इट फॉर टुडे।